कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द लेगेसी ऑफ रिवॉल्ट। द नेक्स्ट ईयर द लेगेसी ऑफ रिवॉल्ट। The revolts of 1857 is unique in a sense that is a cut across the caste, communities, and class barrier. Indian people for the first time put up on field of challenge to be British rule. To the effect of the rebels fell, the British government was pressurized to be a change their policy toward India. In August 1858, by the Act of the Better Government of India, both the Board of Control and Board of Directors were abolished, and the Office of Secretary of State India was created with on the Indian Council of 15 members to assist the Viceroys of India, and designation of earlier known as the Governor General India. In August 1858, the British crowd assumed control of India from the East India Company, and in 1877, Queen Victoria was the crowned Empress of India. This is important, for in this time, the 1877 Queen Victoria was the crowned as the Empress of India, and this brought to be an end of the rule of East India Company. In the proclamation of 1st November 1858 to the Queen announced a continuation of the company policies. India became a colony of British Empire. The Indian rulers were assured of their right to be succession after the adoption. The Crown is promised to honor all the territories and the agreement made by the company with the rules of Indian state. By now, the British had become a distrust of the Indian Muslim unity. They decided to follow their policy of divide and rule the country. They keep a tight control over key opposition, both in the civil and military administration. To give expression to this pleasure, the Indian Civil Service Act of 1861 and was passed, and which provided to the annual competitive examination to held on London for a requirement of the coveted civil service. That is the most important here. The revolt played a pivotal role in the Anglo-Indian history. The British became continued their defensives about their empire, while the many Indians remained better and would be never trust their rule again. It was not until the emergence of Indian National Congress in 1885 and Mahatma Gandhi that India regretted there is a movement for home or rules. One group which keep away from to the travels and opposition to be a British was the English educated India. The English educated India, there is important things here, and these groups are often it's a rise to be a condition of the new rule. And some of its members were a descendant of the new Bengali Jamidars, a class created by the permanent settlement in Bengal. It is crucial to be noted that some members of this entire group returned against the British, and some 30 and 40 years after the revolt, in 1857. The army had been mainly responsible for the crisis of 1857. Hence, the radical change were introduced in the army. The strength of European troops in India was increasing. A number of Indian troops reduced from the pre-1857 figure. All India artillery is a unit. Units with their expansion of new and few mountains batters and were disbanded. Better thereby or disbanded even there is a artillery and keep with the British soldier. On the other hand, there was a attempt to be paid native against the natives on the basis of the caste, religions and reasons. All the big posts in their army and the alternative department were reserved for the European. And there was a mutual
distrust and the fear of between the Indian and the British. It was increasingly realized that one basis case of the revolt of 1857 was a lack of contact between the rulers and the ruled, and thus the humble beginning to award there is a development of representative institution in India was made by the Indian Counseling Act of 1861. The emotionally after effect of the revolt were various. There are most unfortunate and radical of bitterness and sharply there is a war as a legacy of struggle. उसके पश्चात है विद्रोह की विरासत। देखिए विद्रोह जो हुई, जो 1800 क्रांति हुई, तो उसका कुछ हमें विरासत भी मिली, कुछ हमें प्राप्त भी हुआ। 1857 का विद्रोह इस दृष्टि से अद्वितीय है कि इसने जाति समुदाय वर्ग के बंधनों से समाप्त कर दिया। यानी जो भारत में वर्षों से चला आ रहा था जाति समुदाय और वर्ग, वो सदैव के लिए ख़त्म हो गई और पहली बार भारत के लोगों ने एकजुट होकर अंग्रेजी शासन के लिए चुनौती खड़ा कर दी। और वो भी चुनौती इतनी तगड़ी कि कहते हैं रानी को भी सोचना पड़ गया। उस समय जो ब्रिटिश की रानी थी उनको भी सोचना पड़ गया। यद्यपि विद्रोहियों के प्रयासों की सफलता नहीं मिली, फिर भी अंग्रेजी सरकार की भारत के प्रति अपनी नीतियों बदलने के लिए बाध्य कर दिया। फिर सारे के सारे रूल रेगुलेशन जो है अंग्रेजों ने भारत में बदल दिया और अगस्त 1858 में यानी 1858 में भारत में 72 सरकार अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी जो 1858 में देखने को मिला। कहते हैं 1858 में उन्होंने सारे चीज़ों को चेंज कर दिया, चाहे बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, सब समाप्त हो गया और भारत के लिए एक स्टेट सेक्रेटरी के पद निर्माण किया गया जिसमें 15 सदस्य की एक भारतीय परिषद को शामिल किया गया ताकि वह भारत के वायसराय एवं पदनाम जिसे पहले भारत गवर्नर जनरल कहा जाता था की सहायता कर सके। यानी जो भारतीय गवर्नर जनरल होता था उसको 15 सदस्य जो थे भारतीय परिषद शामिल किया गया जिनको सहायता के लिए बनाया गया। अगस्त 1858 में जो है ब्रिटेन के समाग्रिस ने भारत का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी ने सीधे अपने हाथों में ले लिया। देखा जाए तो ये उनका डर थी कि भारत का नियंत्रण उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने सीधे अपने हाथों में ले लिया। और 1877 में रानी विक्टोरिया को भारत की जो है समाग्री घोषित कर दिया गया। तो देखिए इसमें जो है विक्टोरिया भी जो भारत के जो है रानी घोषित की गई और इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। और 1 नवंबर 1858 की जो उद्घाटनों के द्वारा रानी ने यह घोषणा की कि कंपनी की नीति को जारी रखा जाएगा और भारत जो है अंग्रेजी साम्राज्य का उपनिवेश बन गया है। भारतीय शासकों जो है आश्वस्त किया गया कि गोद लेने के उपरांत उनके उत्तराधिकारी के अधिकार को मान्यता दी जाएगी, जिसके कारण लक्ष्मीबाई को अपनी प्राण की आहुति देनी पड़ी। वो उसके मृत्यु के पश्चात इस रूल को लागू किया गया। समाग्रेस में वचन दिया कि कंपनी द्वारा भारत राज्य के शासकों के साथ की गई संधि और करनामों का मान रखा जाएगा। यानी वो सारी बातें मान गए जो पहले वो मानने को तैयार नहीं थे। यानी देखा जाए तो 1857 क्रांति कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अब तक अंग्रेजों के हिंदू मुसलमान एकता पर पक्का भी अविश्वास हो गया था और उन्होंने देश में फूट डालो और राज्य करने की नीति को अपनाने का निर्णय किया और सिविल और सैनिक प्रशासन में केंद्रीय पद पर उन्होंने अपना सख्त नियंत्रण बनाए रखा। और इस इरादों को आजाम देने के लिए इंडियन सिविल सर्विस अधिनियम 1861 जारी किया गया, जिसके द्वारा आकर्षक सिविक सेवा में चयन के लिए लंदन में हर वर्ष एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन शुरू किया गया। और इस विद्रोह में एंग्लो इंडियन इतिहास में केंद्रीय भूमिका भी निभाया। अंग्रेज सावधान हो गए और अपने साम्राज्य के प्रति सकारात्मक भूमिका में आ गए, क्योंकि उनको अब डर सी थी कहीं दोबारा एक क्रांति उठ न खड़ा हो। जबकि भारतीयों के मन में जो है कड़वाहट भरी रही कि वे अब कभी भी अपने शासकों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। और यह विश्वास तब नहीं हो पाया जब तक 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना नहीं हो गई। कहते हैं जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, तब भारत को थोड़ा विश्वास हुआ और महात्मा गांधी के साथ भारतीयों ने होम रूल के लिए पुण्य गति हासिल नहीं कर ली।
और एक समूह जो इस मुसीबत और अंग्रेजों के विरोध से दूर रहा वह है अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय लोगों का समूह। तो ये बहुत ही चिंता का विषय था कि जो व्यक्ति पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, वो इस विद्रोह से बहुत दूर रहे। उन पर प्रश्न चिन्ह उठता है, क्या उन्होंने इसलिए शिक्षा प्राप्त किया था कि वो अंग्रेजों की वफादार बन के रह जाएं? तो ये 1857 क्रांति में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। और यह समूह अपनी नीतियों का श्रेय नए शासन की स्थितियों को देता था। और इसके कुछ सदस्य जो है बंगाली जमींदारों के नए समूह भी थे। वो वर्ग जो बंगाल के स्थायी बंदोबस्त की पैदाइश था। यह जानना रोचक होगा कि इस कुलीन समूह के कुछ सदस्य 1857 विद्रोह के करीब 30 या 40 वर्ष बाद अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। देखिए, कहते हैं जो उनको उस समय होना चाहिए था वो उस समय न होके, कहते हैं 30 या 40 वर्ष के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध हुए। तो कहते हैं अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर आप 40 वर्ष पहले ही जाग जाते तो कहते हैं करीबन जो है 90 साल की दास्तां शायद आपको ना मिलता। तो वही बात है, जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए उसको वहीं ही करना चाहिए। उससे पहले और उसे जल्दबाजी में करना कभी भी जनहित नहीं कहलाती है, वो कल्याणकारी भी नहीं होती है। 1857 संकट के मुख्यतः सेना जिम्मेदार थी। अंत सेना में कुछ मूलभूत परिवर्तन शुरू किए गए, क्योंकि देखा जाए तो मंगल पांडे जो स्टार्टिंग दौर में जो है क्रांति का बुगुल बजाए थे और वो सैनिक थे, इसलिए सैनिक में जो है बहुत चीज़ों का जो है बदलाव करना अनिवार्य समझा गया। भारत में यूरोपियन ट्रस्ट ने जो है सैन्य बल में वृद्धि की गई और भारतीय ट्रप्स की संख्या में 1857 से पूर्व की संख्या से भी ज़्यादा कमी कर दी गई। कुछ एकड़ माउंटेन्स बैटरीज के छोड़कर सभी भारतीय तोपखाने आर्टिलरी यूनिट को समाप्त कर दिया गया। और यहाँ तक कि अंग्रेज सैनिकों के साथ आर्टिलरीज को रखा गया। और दूसरी ओर स्वदेशी को जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर स्वदेशी से भी लड़वाने का प्रयास किया गया। सेना और तोपखाना विभागों जो आर्टिलरी डिपार्टमेंट्स में सभी बड़े पदों को यूरोपियनों के लिए आरक्षित कर दिया गया। और भारतीय और अंग्रेजों में परंपरा अविश्वास और डर व्याप्त थी। बड़े समय से यह अनुभव किया जा रहा था कि 1857 के विद्रोह का मूल कारण था और शासक और शासित में परंपरा संपर्क का अभाव था। कहते हैं शासक और शासित में संपर्क नहीं होता है तो ये कभी भी सही नहीं होता है। और इस प्रकार इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के द्वारा भारत में प्रतिनिधित्व संस्थाओं के विकास का एक नए विनियम प्रयास शुरू किया गया। और विद्रोह के जो है भावनात्मक उत्तरोत्तर प्रभाव शायद सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण थे और नस्लीय करवाहट इस संघर्ष की शायद सबसे बड़ा विरासत रही थी। तो आप समझ सकते हो कि 1857 क्रांति बेशक ही सफल नहीं हुई, लेकिन अंग्रेजों को सोचने में मजबूर कर दिए। 1857 क्रांति बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाती, पुण्य हो जाती, अगर शिक्षित वर्गों का जो है साथ मिलता। कहते हैं शिक्षा हासिल करने का अर्थ होता है जागरूकता, लेकिन उस समय शिक्षित वर्ग ये नहीं समझ सके कि उनकी आज़ादी उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। शायद वो भी एक कहानी की तरह रह गए जो नहीं होना चाहिए था। तो कहते हैं 40 वर्ष बाद वो जागे और फिर भारत आज़ाद हुआ। कहते हैं कोई चीज़ को बढ़ने में सिर्फ एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता है, इसमें सारे समुदाय, सारे लोगों का जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहते हैं छोटा सा प्रयास भी बहुत कुछ बदल के रख सकता है। जैसे त्रिपाठी सेंटर हमेशा कहता है कि आपका छोटा सा प्रयास चाहिए, थोड़ा सा जो है हल्का सा हेल्प चाहिए, जो हेल्प करने में आप सक्षम नहीं रहती हो। आप वीडियो देख लेते हो, उसके बाद बंद करके रख देती हो। लेकिन कहते हैं कोई चीज़ को अगर आगे स्टिमुलेट करना है, अगर आगे बढ़ाना है और आपको और अच्छा चाहिए तो उसको बढ़ाने की भी आवश्यकता होती है। और आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है कि जो ये वीडियो है उसको कैसे आगे बच्चों तक फॉरवर्ड किया जाए। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, जितना हो सके शेयर करना है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रख लीजिए।